आप डीजेबी का क्वेश्चन 13 में आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पूरा कॉपी में लिख के करेंगे, रिटन प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। Learning Horizon is an educational institute that conducts courses for students in accounting, law, and economics. The institute is partially funded by the government. The institute aims to provide quality education to students of all backgrounds. The institute admits students who can fund their education privately as well as those who get sponsorship from the government. Knowledge Base is another educational institute in the same city providing courses similar to Learning Horizons. It is entirely privately funded college where students arrange to pay for their own fees. So who is Knowledge Base? Knowledge Base is our competitor. It can be taken as a peer institution for comparison purposes. Information about their operations for the year ended 31st March 2018 are as follows. Both Learning Horizon and Knowledge Base offer their courses that last the entire year. All of them are regular classroom lectures conducted through the week. Budget and actual fee rate for the year are the same. Information about the fees for each course are as follows. Budget and actual are same. So Learning Horizon has got two categories. Privately funded students need to pay 1,20,000 और government funded student need to pay fees of 75,000 for accounting. ऐसे ही लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए है, ये पूरा प्राइवेटली फंडेड है और इसका फीस आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो अकाउंटिंग में कम है, लॉ में ज़्यादा है और इको में भी ज़्यादा है. Salary details for lecturer and administrative staff are as follows. लर्निंग हॉराइजन में बजट था 5 लाख, एक्चुअल में दिया 550. एडमिन स्टाफ में 3 लाख है और यहाँ पे नॉलेज बेस में एडमिन स्टाफ को ज़्यादा दे रहे हैं, लेक्चरर को भी ज़्यादा दे रहे हैं. तो ज़्यादा देने का एडवांटेज भी है कि वो लोग एफिशिएंटली काम करते होंगे, मोटिवेटेड रहते होंगे. और कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है आप सेम काम ही करा लेते हैं कम देकर भी. तो हर एक चीज़ का दो पहलू है. पहला पहलू ये भी हो सकता है कि ज़्यादा दे के हम ज़्यादा काम कराते हैं. दूसरा ये हो सकता है कि हम ज़्यादा बेकार का दे रहे हैं, आदमी सेम ही काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है. Budgeted costs for the year based on 8,500 students per annum for Learning Horizons are as below. कॉस्ट में ट्यूशन मटेरियल, केटरिंग, क्लीनिंग, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट और डिप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है. अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्रीलांस स्टाफ. सो इसमें वेरिएबल फिक्स का ब्रेकअप भी है. देन एक्चुअल कॉस्ट अदर देन सैलरी कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. सो आप देखेंगे
कंपैरिजन करते चलो थोड़ा थोड़ा ट्यूशन मटेरियल का ज़्यादा लगा। अब ज़्यादा लगा बस ऐसे बोलने से नहीं होगा, हो सकता है स्टूडेंट ज़्यादा हो। बजट में तो 8,500 स्टूडेंट है, एक्चुअल कॉस्ट में स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ अभी तक। सो ट्यूशन मटेरियल, केटरिंग, क्लीनिंग, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा लग गया, डिप्रिसिएशन सेम है। तो ज़्यादा कहाँ लगा? ट्यूशन मटेरियल में, ऑपरेटिंग कॉस्ट में, बस ये 2 जगह। वहीं नॉलेज बेस का देखेंगे तो उसका कम लगता है कॉस्ट, केटरिंग में ज़्यादा खर्चा करता है, क्लीनिंग में भी ज़्यादा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, डिप्रिसिएशन ज़्यादा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्रीलांस स्टाफ ऑल्सो। Keeping in line with latest technological developments, the management of knowledge base is introducing online tuition support by its lecturing staff. Learning Horizons, on the other hand, offers distance learning course. A general feedback from prospective students has revealed that some students would like weekend courses since during the week they focus on their regular job. Also, some students have requested for intermediate qualification in the event that they discontinue the course halfway due to inability to complete the course or for other personal reasons. They have requested for intermediate qualifications. इसका मतलब जैसे कि 1 साल का कोर्स था ना, अगर हम थोड़ा सा जल्दी भी ड्रॉप आउट कर जाएं, उसको छोड़ दें, तो भी हमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, डिग्री मिल जाए कम से कम। जैसे आप लोग को मिलता है पता है, सीए में इंटर पास कर लिया अगर और 9 महीने का आर्टिकलशिप हो गया, ये 2 क्राइटेरिया अगर मीट हो गया तो आप अकाउंटिंग टेक्नीशियन नाम का एक डिग्री ले सकते हो इंस्टीट्यूट से। कुछ नहीं करना है, इंटर पास होना चाहिए और 9 महीने का आर्टिकलशिप पूरा हो गया तो वहाँ पे एक फॉर्म भर के अकाउंटिंग टेक्नीशियन का एक डिग्री मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अप्लाई करके ले लीजिए, कम से कम सीए हो नहीं हो एक डिग्री तो है, और हो तो भी क्या, अकाउंटिंग टेक्नीशियन भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, 2 डिग्री लिखिएगा, ठीक है। जो आपके भाई बंधु खाली इंटर पास है बेचारे, फाइनल अब ड्रॉप आउट कर चुके, आर्टिकलशिप भी किया हुआ, उनको भी बता दीजिए अकाउंटिंग टेक्नीशियन का डिग्री तो ले ले, कम से कम कुछ तो लिखने लायक रहेगा, इंस्टीट्यूट देता है ये। Both Learning Horizon and Knowledge Base have a policy to have a lecture staff of 50 throughout the year. When there is a shortfall in teaching staff available, instead of recruiting a full-time lecturer, Knowledge Base substitute the requirement with freelance staff. The cost of freelance staff is much lower than regular staff. इस कारण से इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहा होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहने का यही कारण है कि वो लोग फ्रीलांस स्टाफ को हायर कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको याद हो 8,500 था, उसका ब्रेकअप दिया हुआ अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स में, और एक्चुअल में थोड़ा सा कम स्टूडेंट आया है 7,850, नॉलेज बेस में थोड़ा सा और कम है। अब नॉलेज बेस के पास अकाउंट्स में ज़्यादा स्टूडेंट क्यों चला गया हम लोग से, वो थोड़ा ट्रिक लगाया होगा, देखा होगा अपने नॉलेज बेस में अकाउंट्स का ही फीस कम है प्राइवेटली फंडेड के मुकाबले, ज़्यादा स्टूडेंट टान लिया। से टान लिया क्या लैंग्वेज है सर, ये सब बनिया भाषा है, बनियों का भाषा। टान लिया, ग्राहक को टान लिया। स्टूडेंट मिक्स परसेंट फॉर ईच कोर्स, प्राइवेटली फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड, इस ब्रेकअप में एडमिशन लेते हैं। 80% प्राइवेट और गवर्नमेंट का 20% होने का बात था, बट 70-30 हो गया, यहाँ तो पूरा प्राइवेट फंडेड है ही। जैसे ये नंबर ए है, ये नंबर बी हो गया। नंबर ऑफ इंक्वायरीज रिसीव्ड, अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स का इंक्वायरीज आपको पता है, तो आउट ऑफ इंक्वायरीज आप कितना कन्वर्ट कर लिए
वो आपको पता चल रहा है। तो ये 8,875 में से 7,800 कन्वर्ट किया, ये 8,800 में से 7,850 कन्वर्ट किया। मतलब हमारा लर्निंग होराइजन का थोड़ा सा सेल एक्टिविटी अच्छा है। देन नंबर ऑफ लेक्चरर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर, नया लेक्चरर को रिक्रूट किया। ये जैसे यहाँ पे ज़्यादा लेक्चरर को रिक्रूट किया, बहुत लोग छोड़ के गए, मतलब 4 को रिक्रूट करना था, 10 रिक्रूट हुए, मतलब 10 लोग छोड़ के भी गए होंगे। और ये एक ही को रिक्रूट किया, बाकी फ्रीलांसिंग से काम चला लिया होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 12, 12 और 9 है, मतलब स्टाफ भी हम लोग थोड़ा ज़्यादा रखे हुए, सामने वाला कम स्टाफ रख के काम करा रहा है। इसका मतलब आप देखो एडमिन स्टाफ का सैलरीज आपको दिया हुआ है ना, ये क्लियर नहीं है कि ये पर हेड का सैलरी है कि टोटल सैलरी है। ठीक है, ये पर हेड का सैलरी है कि टोटल सैलरी है, 12 आदमी का, 50 आदमी का, तो इतना कम तो 50 आदमी का नहीं होना चाहिए जिस तरह का फिगर्स यहाँ पे घूम रहा है। आज मेरे पास 50 लेक्चरर अगर हैं या 12 स्टाफ हैं तो सबका मिला के 5 लाख होगा, ये उचित नहीं लग रहा है। ये पर स्टाफ ही रहा होगा, ये अजम्पशन से समझ में आ रहा है। एडमिन स्टाफ को हम लोग 3 लाख देते हैं, सामने वाला 4 लाख देता है, तो कम आदमी रख के काम करा लेता है। हम लोग को 3 लाख देना होता है तो 12 आदमी रखना पड़ता है। हम लोग माने लर्निंग होराइजन। पास रेट आपको दिया हुआ है, ये स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अकाउंट्स में पास रेट 95 और गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स जो हैं, सॉरी बजट में 95 है और एक्चुअल में 99 है। लॉ में 95 के जगह 98 होगा, इकोनॉमिक्स में 95 है, और ओवरऑल पास रेट हमारा अच्छा ही है। अब ये मत सोचो कि धांधली हुआ होगा, ऐसा नहीं सोचो, हमेशा प्योरिटी सोचो माइंड में, बोले सब अच्छा चल रहा है, यहाँ पे तो पास रेट ज़्यादा है, अच्छा है, बेटर है, ओवरऑल पास रेट बेटर है, गुड परफॉर्मेंस, दिस विल इंडिकेट स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। नाउ डेज इन अ ईयर व्हेन फ्रीलांस लेक्चर्स वेर यूज्ड, तो हम लोग तो यूज़ नहीं करते, सामने वाला 30 दिन यूज़ किया। और नंबर ऑफ़ न्यू कोर्सेज हम लोग को डेवलप नहीं किए, सामने वाला डेवलप तो किया है। सो इतना सारा डिटेल दे दिया सर, एक बार पूरा पैरा सारा वापस देखें तो पहला पैरा में आपको जस्ट हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट इधर आपको फ़ी रेट बताया, ये फ़ी रेट भी ऑफ कोर्स पर स्टूडेंट ही होगा ना, लिखा नहीं है तो बट समझ में आ रहा है, फॉर ईच कोर्स से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर सैलरी डिटेल्स ऑफ लेक्चरर पर स्टाफ आपको मालूम है, पर स्टाफ एंड पर लेक्चरर। फिर बजटेड कॉस्ट आपको एक टोटल में दिया हुआ है, वेरिएबल और फिक्स्ड ब्रेकअप क्यों दिया है, क्योंकि ये 8,500 स्टूडेंट के हिसाब से है, और एक्चुअल कॉस्ट में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने देखा ना अभी 7,850 है। सो आप बजट का ये वाला वैल्यू 8,500 को आप बोल सकते हैं ये एक्स आनते हैं, ओरिजिनल बजट जिसको अपने बोलते हैं, जो आपका एक्चुअल से कंपैरेबल नहीं है। कंपैरेबल बनाने के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाना चाहिए, यानी कि एक्सपोस्ट बजट बनाना चाहिए। 7,850 स्टूडेंट के लिए बजट रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको बोला है यहाँ पर स्टूडेंट का डिमांड है वीकेंड कोर्स और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन। दूसरा, सामने वाला ऑनलाइन ट्यूशन डेवलप कर रहा है, हम लोग अभी भी पुराना डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में चल रहे हैं। फ्रीलांसिंग स्टाफ के बारे में बोला और एक पूरा अपेंडिक्स दे दिया जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट मिक्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज रिसीव्ड, नंबर ऑफ लेक्चरर्स एम्प्लॉयड, रिक्रूटेड, नया कितना रिक्रूटमेंट हुआ, एडमिन स्टाफ, पास रेट, डेज इन अ ईयर, नंबर ऑफ न्यू कोर्सेज वगैरह दिया हुआ है। नाउ यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लर्निंग होराइजन्स। The results for the year are to be reviewed next week by the management. To assess performance, you want to prepare the report as per
फिट्जगराल्ड एंड मून मॉडल। फिट्जगराल्ड एंड मून इसीलिए बोलते हैं, कभी कभी नाम याद रखना पड़ता है। फिट्जगराल्ड एंड मून मॉडल का दूसरा नाम है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। याद है ना, 3 ब्लॉक होते थे, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक, एक रिवॉर्ड ब्लॉक और एक डिमेंशन ब्लॉक। और डिमेंशन में 2 पार्ट होते थे, 4 डिटर्मिनेंट्स थे और 2 रिजल्ट्स थे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता ना, एक बार सूख जाता अपना पूरा गला कि क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिख दिया ना तो थोड़ा ठंड पै गया, ठंड। यूजिंग द रिजल्ट्स डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस as per Fitzgerald Moon model, prepare a variance analysis of learning horizons, actual and budgeted financial performance. Very good. Also, based on the information given in the problem, calculate the actual financial figures for knowledge base. Use it as a basis to prepare analysis of competitiveness of learning horizon and knowledge base. इसका मतलब है कोलेट मतलब इकट्ठा करो, वर्ड कोलेट मतलब इकट्ठा करो, मतलब आप यहाँ पर लर्निंग होराइजन का बजट एक्चुअल को कंपेयर करो और फिर उसको नॉलेज बेस से भी कंपेयर करना और पूरा एनालिसिस प्रेजेंट करो। तो ट्रिक क्या था यहाँ पे कि जो बजट है वो आपका होगा फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ये इम्प्लाइड है। फिर बोल रहा है यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस एज पर फिट्जगराल्ड मून मॉडल एक्सप्लेन क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स, इनोवेशन। ये 4 CSF है, तो एक्सप्लेन करना है मतलब आपको यहाँ पे इन CSF का KPIs खोज के, तो KPI खोज के एक्सप्लेन करना है कि हम उस पर काम कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। Then course fees set by the government for various subjects cannot be increased beyond an average of 75,000 per student. If the costs are maintained within this budget, the government can provide more sponsorship or grants in future. Advise a method that the management of learning horizon can use to resolve this. अगर फीस को इतना पे लिमिट करना है, ठीक है, और कॉस्ट इसी के अंदर रखना है, तो कौन सा मेथड को अपने फॉलो करेंगे तो ये अचीव हो पाएगा। जब प्राइस पहले से फिक्स्ड हो जाए और उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट और कॉस्ट कमाना हो, तो मेथड का नाम है टारगेट कॉस्टिंग। हालांकि आपको याद होगा टारगेट कॉस्टिंग हम लोग सीखते थे तो बोलते थे कि ये वहीं लगाना जहाँ पे कॉस्ट इनिशियली कमिट हो जाता है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट पहले से कमिट हो जाए, बिकॉज अगर हम लोग वैसा कॉस्टिंग सिस्टम बना पाते हैं जिसमें कोर्स का डिज़ाइन करते वक्त कितना आवर कोर्स पढ़ाना है, कौन कौन पढ़ाएगा, वो अगर पहले से कमिट हो जाए और उसके हिसाब से सारा कोर्स को उसी फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाए, तो हो सकता है हम टारगेट कॉस्टिंग से यहाँ पे काम कर सकते हैं। हालांकि टारगेट कॉस्टिंग तभी लगेगा जब आपका कोई डिज़ाइन लेवल पे कॉस्ट कमिट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कॉस्ट लॉकअप हो जाएगा शुरुआत में ही जब कोर्स डिज़ाइन करेंगे, और हमेशा फिर उतने ही कॉस्ट पे सारा कोर्स यदि हम कराते रहेंगे, उतने ही कॉस्ट पे यदि हम सारा कोर्स कराते रहेंगे तो टारगेट कॉस्टिंग वायबल है। ऑलराइट, सो देखो इसमें KPI खोजते हैं, एक एक करके चलते हैं, एक साथ तीनों सोचेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। KPI खोज लेंगे, ना कोई टफ नहीं है, इतना सारा KPIs ऑलरेडी अपेंडिक्स में दिया हुआ है, मिल जाएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस जैसे एक एग्जांपल मैंने दे ही दिया था आपको, पास रेट से मिल जाएगा, और भी हर एक का मिल जाएगा। अपने एक एक करके चलते हैं, पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट बहुत अच्छा है और आसान भी है, ठीक है। खाली देखने से होगा नहीं बच्चा लोग, करना पड़ेगा। चलो कैलकुलेटर ले लेंगे और आंसर टाइप करते रहेंगे तो मज़ा आएगा। आंसर टाइप करते रहेंगे जैसे जैसे मैं पूछूंगा तो बहुत मज़ा आएगा।
पहला पार्ट में स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस vis-a-vis competitive performance under result dimension. Particulars लर्निंग हॉराइजन्स का बजट और एक्चुअल, थोड़ा चौड़ा चौड़ा कॉलम बना लो आप। और नॉलेज बेस का एक्चुअल, पहले रेवेन्यू निकालते हैं। रेवेन्यू में सब्जेक्ट्स है यहाँ पे अकाउंट्स, प्राइवेटली फंडेड स्टूडेंट का फीस अलग है और गवर्नमेंट फंडेड का अलग है। बजट कॉपी नहीं करना है, बजटेड फीस को चेक करो। बजटेड फीस को चेक करो। बजटेड फीस है अकाउंट्स का प्राइवेट में 1,20,000 करके, ठीक है। तो 1,20,000 इंटू एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। रेट should be multiplied by actual number of students. So in case of budget, it is 1,20,000 multiplied by 3,800। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को है ना, बेस्ट यही होगा कि आप एक कॉलम और बना लीजिए, बेटर होगा। यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, थोड़ा इजी होगा करना।
नंबर्स और अमाउंट 2 कॉलम कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पर भी, क्योंकि ना फिगर्स नंबर का भी वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट, फिर आपका अकाउंट्स के बाद ऐसे 2 सब्जेक्ट और है, उसमें भी प्राइवेट गवर्नमेंट। अब थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो एक्चुअल में कितना स्टूडेंट है, 7,850 है। उसमें प्राइवेट का 70% और गवर्नमेंट का है 30%। ठीक है, सो आप 7,850 का 70-30 करके फिर उसका ब्रेकअप कर सकते हो, या फिर 3,800 आपके पास है ना, टोटल 7,850 का ब्रेकअप, उसमें 70-30 करो, 3,800 का 70% करो। ठीक है, और बजट में जब जाएगा, बजट में जब जाएगा तो कितना होगा ये बताना। बजट में जब जाएगा तो कितना होगा ये बताना। ये आपको समझ में आया? 3,800 का 70-30 करने से एक्चुअल का नंबर्स आ जाएगा। यहाँ पे टोटल है 3,800, ठीक है, तो 3,800 का 70% करने से एक्चुअल का नंबर आ जाएगा 2660। 3,800 का 30% करने से इसका नंबर आ जाएगा जो है 1140। थोड़ा स्पेशियस रखिए, जितना हो सके गैप देके वर्किंग भी लिखते जाइए, क्योंकि रेफरेंस में काम ही आएगा। 1140। ओके, तो टोटल है अकाउंट्स का कितना, 3,800 है। ठीक है, उसी को हमने ब्रेक किया। नाउ बजट में भी 3,800 ही होना चाहिए कि और अलग होना चाहिए, ये आप बताइए। बजट में 3,800 होना चाहिए कि 3,800 से अलग होना चाहिए, ये इसका ट्रिक है। देखो, बजट में हम क्वांटिटी खाली चेंज करने वाले हैं, 7,850 इंस्टेड ऑफ 8,500 हम 7,850 पकड़ेंगे, बट हम रेशियो नहीं चेंज कर सकते। हम 3,800 को फिक्स नहीं करेंगे, हम 7,850 को एज पर बजट लेना चाहेंगे। तो 7,850 का 80% अगर प्राइवेट है, तो टोटल प्राइवेट स्टूडेंट्स हुआ 6,280। इसको 80-20 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब प्राइवेट में अगर टोटल प्राइवेट स्टूडेंट्स मेरा 6,280 आ रहा है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको अकाउंट्स में, लॉ में और इकोनॉमिक्स में। क्या रेशियो में ब्रेक होगा, आप इसको जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसी रेशियो में ब्रेक कर दीजिए, यानी 6,280 को फिर इस रेशियो में ब्रेक कर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, जब अपने रिवाइज बजट बना रहे हैं ना, ये जो बजट बना रहे हैं ये रिवाइज बजट है, फ्लेक्सिबल बजट। ये रिवाइज बजट में हमारा अकाउंट्स का टोटल स्टूडेंट 3,800 कॉपी मत करिएगा, ओवरऑल 7,850 स्टूडेंट होगा, ओवरऑल 7,850 ही होगा, यहाँ पे भी 7,850 ही है। ठीक है, नाउ आपको करना क्या है, आपके पास अगर ओवरऑल 7,850 है तो 80% उसमें प्राइवेट है। ठीक है, 20% गवर्नमेंट है, बिकॉज 80-20 का मिक्स चल रहा है।
80 और 20 का मिक्स चल रहा है, ठीक है, ये 80 है, 20 है, तो 80-20 का मिक्स चल रहा है, तो 80% प्राइवेट स्टूडेंट हो गए, 6280। अब 6280 में अकाउंट्स के कितने होंगे वो इस रेशियो में तोड़ देंगे, 4 40 25 और 20 का रेशियो में। तो हम क्या कर रहे हैं, 7850 का पहले 80% ले रहे हैं, तो टोटल प्राइवेट स्टूडेंट आ रहा है, 7850 का 80% ले रहे हैं, तो टोटल प्राइवेट आ रहा है, और फिर उसको जो हमारा बजट का रेशियो है वो है 40/85, उस रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं। देखिए कितना फिगर आ रहा है इसका, 2955 आ रहा है क्या, चेक करिएगा। फिर इसी का गवर्नमेंट का आप वर्किंग बताओ क्या होना चाहिए, आप अपने आप बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट का वर्किंग बताओ, 7850 मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई 40/85। 7850 का 20% इंटू 40/85, ये आ रहा है 739। ऑलराइट, गुड, बढ़िया अरविंद जी, आंसर बता रहे हैं आप, +2955 3694। थोड़ा सा गैप रख रख के करो। ओके, अब आपका अकाउंट्स का आपको फीस रेट मालूम है, प्राइवेट में फीस रेट क्या है, बजट में, बजट में फीस क्या है, 1,20,000 है, तो 2955 इंटू 1,20,000, बजट एक्चुअल का रेट सेम है, प्राइवेट का रेट है 1,20,000। बाप रे बाप, कैसे लिखें भाई, रुपीज इन लैक्स कर दें, रुपीज इन लैक्स कर दें, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगा। $3546 आ गया। फिर यहां पर गवर्नमेंट फंडेड का फीस है अकाउंट्स में 75,000 करके, 739 इंटू 75,000, 739 इंटू 0.75, ये आ रहा है 554.25। एक्चुअल में करिए 2660 इंटू 1.2, 3192, फिर 1140 इंटू 0.75, 855, और नॉलेज बेस का एक्चुअल आपको पता है क्या, अकाउंट्स का स्टूडेंट है 4100 और सब प्राइवेट है, तो 4100 और उसका फीस कितना है, 4100 इंटू 1,00,000, तो यहाँ पे 4100 लाख ही आ गया, गवर्नमेंट का वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसे मैंने एक सब्जेक्ट का किया है, आपको लॉ और इकोनॉमिक्स का करके दिखाना है, मैं वेट करूँगा, जैसे जैसे आंसर आते जाएगा टाइप करते जाएंगे।
सेम अप्रोच है। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। लॉ में 7850 है, उसका 80% ही है, बट ये प्रोपोर्शन चेंज हो गया जो है 25/85। वन 1847। फोर 62। मैं एक शॉर्टकट लगाया, देखो ये 80 है और ये 20 तो करना है, तो 80 और 20 में बस 4 टाइम्स का फासला है, तो इसको डिवाइड बाई 4 करने से ये आ जाएगा, उसी तरह से डिवाइड बाई 4 करने से ये भी आ जाएगा। कि 80 को तो 20 करना है। एक्चुअल में है 2550। 2550 का 70% 1785, 765। मिस्टेक यही होता है कि अगर नहीं किया हुआ हो ना, तो आप दोनों में ये वाला स्टूडेंट भी सेम कर देते हैं, ओवरऑल स्टूडेंट सेम रहेगा, ओवरऑल स्टूडेंट सेम रहेगा, बट पर सब्जेक्ट में मिक्स चेंज हो जा रहा है। रेवेन्यू निकालो, रेवेन्यू निकालो। लैक्स में जाने से क्या फ़ायदा है, देखो इंटू 1847 इंटू 1.2, पूरा टाइप नहीं करना, 2216.4। इंटू 0.9 इज 415.8। 2142। 688.5। गुड गुड गुड, आंसर देते जाइए आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ आपका आंसर, आप चिंता नहीं करिएगा। अरविंद, श्वेता, बादल, मैं आंसर पढ़ रहा हूँ, आप टाइप करते जाएंगे। यहाँ पे है 2500 इंटू 1.5 लाख,
3750। आप चाहो तो ये सब टोटल भी ले सकते हो, मैंने लिखा नहीं, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या था ना, फेस टू फेस क्लास होता था तो कभी कैलकुलेटर मेरा क्लास में यूज़ ही नहीं किया हुआ है। मैं कभी नहीं रखता था अपने पास कैलकुलेटर, हाथ में ही नहीं रखता था। ऑनलाइन क्लास जो हो गया वो क्या सिखा दिया देखिए, खुद से कैलकुलेशन करना शुरू करना पड़ गया। स्टूडेंट ही कैलकुलेटर बन जाते थे ना। इकोनॉमिक्स में बजट 1478 और 369, तो 1847, एक्चुअल में है 1500, सेवेंटी थर्टी तोड़ा तो 1050 और 450। क्या बात है, अभी शुभम भी जाग गया है, बढ़िया है भैया। नेक्स्ट, इको का प्राइवेट का रेवेन्यू बता रहे क्या? अस्सी और 60 हज़ार है। इको प्राइवेट शुभम मैच नहीं किया। ओके, एक्चुअल का अमाउंट आपने बताया है 840 और 270। ओके, अरविंद ने बता दिया, और श्वेता ने मुझे लग रहा है ये बताया होगा। 1478 इंटू 80, 1182.4 और 221.4। गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं भाई साहब, इंसान ही गलती करता है। इसका बताइए, नॉलेज बेस का बताइए, इसका प्राइवेट स्टूडेंट कितना है? 1200 और फीस है 1 लाख, तो 1200। आप चारों का टोटल कर दीजिए, टोटल रेवेन्यू निकाल दीजिएगा। गुड। 3 ही सब्जेक्ट था ना, ए प्लस बी प्लस सी करिए। पानी पीते रहना चाहिए, आप लोगों को कितनी बार बोला है।
नियम के हिसाब से हर 20 मिनट में पीना चाहिए, इतना याद नहीं रहता तो 40 मिनट में पी लो भाई। टोटल रेवेन्यू टोटल स्टूडेंट यहाँ पे भी 7850 आएगा, यहाँ पे भी 7850 ही आएगा। रेवेन्यू का टोटल वेट कर रहे हैं। अच्छा आ गया 8136.25 और 7987.5 और इसका 3750 और 1200 9050 और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं 7800। अब अपने एक्सपेंसेस में चलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में पहला एक्सपेंस है क्वेश्चन के हिसाब से चले तो सैलरी। सैलरी में लेक्चरर्स हैं और कितने लेक्चरर्स हैं आप देखिए, बजट में नंबर ऑफ लेक्चरर्स 50 है, एक्चुअल में भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है। कॉस्ट बताइएगा तीनों, रेट आप खोजिए, 50 50 50 का रेट आप खोजिए और कॉस्ट बताइए। देखो रिटन प्रैक्टिस का कारण यही है कि थोड़ा सा माथा जागे और पता चले कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है। इस चैप्टर से बड़ा बड़ा क्वेश्चन काफ़ी उम्मीद किया जा सकता है, कुछ कुछ तो प्योर थ्योरी होता है, तो गनीमत है कि इसमें इतना प्रैक्टिकल है। 50 इंटू 5 लाख, तो 50 इंटू 5 हो गया 250, 275 और 300। एडमिन स्टाफ 12 12 9, तीन लाख और 4 लाख, 36 और ओहो 36, वेरी गुड। तो 62 आदमी हैं, 286, 62 275 और 36, 311, 59 ही है और 336 है।
शुभम सही बोला। ये मेरा टाइपिंग एरर हो गया, ये 1010 नहीं है, ये 1110 है। 840 और 270। गलती से लिख दिया, जो आपने बोला ना वही मैंने रिपीट कर दिया। गलती से टाइप हो गया। ओके, सैलरी के बाद नेक्स्ट कॉस्ट क्या है देखो। अब तो वो .4 खाली नोट्स का जो है क्वेश्चन का, उससे कॉपी पेस्ट करना है। ट्यूशन मटेरियल, केटरिंग, क्लीनिंग, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, डेप्रिसिएशन। अभी इसमें झमेला क्या है, वेरिएबल और फिक्स्ड का झमेला है, ठीक है। वेरिएबल और फिक्स्ड का झमेला है। काम करता हूं, नाम नहीं लिखकर अलग अलग ही करता हूं। वेरिएबल और फिक्स्ड ब्रेक करके करो। जैसे यहां पे भी इसको ए बी कर दो, इजी रहेगा, बाद में टोटल लेना। वेरिएबल है 100%, तो 40, 3 2 5 2 7, 40 करोड़ रुपया है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, फिक्स नहीं है, इसमें वेरिएबल है। तो 40 करोड़ रुपया यानी कि 40 × 100 कर देंगे, 4,000, 4,000 लाख हो गया। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000, 500 स्टूडेंट का, ये 8,500 इंटू 7,850 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आ रहा है 3694.12। एक्चुअल में है 42 लैक्स, यानी कि 42 करोड़, यानी कि 4,200। यहां पे है 4,000।
नेक्स्ट केटरिंग का वेरिएबल पार्ट 75% और फिक्स पार्ट 25% है। केटरिंग का करके बताओ। 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ यानी 1000 लाख। $42 नहीं है बेटा, 3 2 5 2 7 0 दिख रहा है, करोड़ है करोड़। 40 लाख नहीं है, वो 42 करोड़ आ रहा है, तो 4200 हो जाएगा। केटरिंग का वेरिएबल पोर्शन है 1000 का 75% इंटू 7850 बाई 8500। 692.65 और फिक्स पोर्शन रहेगा सेम, जो होगा 250। $942.65। इधर तो एक्चुअली पता है, सीधा टोटल पता है। हजार है और इधर भी पता है 1300 है। अरविंद, आपका लाख करोड़ में गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक बार ध्यान से देख के करो। नंबर डी, क्लीनिंग। वेरिएबल और फिक्स्ड। सर ये तो एक ही क्वेश्चन में आज पूरा टाइम चला जाएगा क्या? हाँ, क्या करूं फिर, ये कराऊं कि ना कराऊं, आप बोलिए। ये भी जरूरी है, क्या करें, लिख के करना भी जरूरी है। बच्चा लोग बोल रहा है कि सर लिख नहीं पा रहे सर, तो समझ में सब आ रहा है, याद भी रह रहा है, लिखने के समय गड़बड़ा जा रहा है। आपका डिमांड पे ये सब करना पड़ रहा है। ये 100 होगा इंटू 25% इंटू 7850 बाई 8500। $69.265 और 26 लिख देते हैं। और फिक्स्ड आएगा 25।  25 × 100 × 25 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 = 25। 25 × 100 =
सॉरी मेरा ही रॉन्ग है, मैं क्या किया, 100 इंटू 25% इंटू 7850 डिवाइडेड बाई 8,500, यस 23.08 है और फिक्स्ड होगा 75। टोटल आ रहा है 98.08। एक्चुअल में क्लीनिंग कॉस्ट है 100 और ये नॉलेज बेस का है 150। फिर आ रहा है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसका भी वेरिएबल फिक्स्ड है और ये 500 है ना। अगर आप दिमाग लगाओगे ये इसका 5 गुना है, 5 टाइम्स है, ठीक है 5 टाइम्स। तो इससे टाइम बच जाता है ये सब बुद्धि लगाने से। वहाँ 100 था, यहाँ 500 और वही 25 और 75 है, इसलिए 23.08 इंटू 5 115.4। 115.44 और ये आ रहा है 375। 490.44 एक्चुअल में हो गया 600 और इसका है 500। डेप्रीसिएशन पूरा फिक्स्ड है, सो 100 लाख 100 लाख 150 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर कर लो, ए से एफ को ऐड करो। यहां आ रहा है 5611.26, 6311 और 6436। ओके गुड। प्रॉफिट निकाल लो, नेट प्रॉफिट।
2524.98 98 आ रहा है। .99 आ रहा है। एक्चुअल में आ रहा है 1676.5 और यहाँ पे आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 2614। ओके, हाँ वो ठीक है, एक ही बात है। अब आपको लग रहा होगा हो गया है, पार्ट 1 हो गया है। कुछ नहीं हुआ, अभी कैलकुलेशन हुआ है, एनालिसिस करने बोला है, खाली स्टेटमेंट बनाने नहीं बोला है, एनालिसिस करने बोला है। तो अब ज्ञानबाजी करना पड़ेगा। अब एनालिसिस भी दो पार्ट में, एक हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। एनालिसिस भी दो पार्ट में होगा। नंबर ए, लर्निंग हॉराइजंस, एक्चुअल वर्सेस रिवाइज बजट। जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फिर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस देखेंगे और सारा लाइन आइटम्स को कंपेयर करना पड़ता है। लाइन आइटम्स में अपने कैसे कंपेयर कर सकते, जो जो प्राइम फैक्टर्स है जिससे प्रॉफिट निकला उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जैसे नंबर 1, आप ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में लिख सकते हैं। द ओवरऑल प्रॉफिट has been less than the budgeted profit बाई, आप चाहे तो परसेंट भी निकाल सकते हैं, 1676.5 माइनस 2524.99 डिवाइडेड बाई 2524.99 बाई 33.6% अप्रॉक्स। This may be due to changes in revenue and cost structure as well as due to non-financial factors such as मेरे को मालूम था कोई नई बात बोलना ही है सर, ये एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का आएगा और ये करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब सवाल आएगा ही मन में। ड्यू टू नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स सच एज क्वालिटी of education, innovation, inefficiency, etc. मैं जब लिखा रहा हूँ ना थोड़ा शॉर्ट करके लिखा दूंगा, जो आपको लिखने से काम हो जाएगा। आपका इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन लिखने जाओगे और पागल हो जाओगे। नंबर 2, प्रॉफिट में
ये सब अभी अपने नहीं उठाएंगे क्योंकि इसके लिए एक सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में बोला है ना। इसलिए हम लोग खाली रेवेन्यू और कॉस्ट के बारे में बात कर देंगे। रेवेन्यू यदि आप देखेंगे तो जो आना चाहिए था उससे मार्जिनली कम आया है। कितना कम आया देखो, परसेंट निकाल लो। ऑन एनालिसिस ऑफ टोटल रेवेन्यू, it is seen that the revenue has declined by a marginal amount. अगर आप चाहो तो अमाउंट में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं हर समय परसेंट निकालना। वन 1.83% आ रहा है क्या? दैट इज ओनली 1.83%। सो प्रॉफिट घट गया 33.6% से, बट रेवेन्यू तो सिर्फ 1.83% से घटा है। इट मे बी ड्यू टू, मे भी नहीं लिखना है, इट इज ड्यू टू, मे भी नहीं, श्योर ही है क्यों हुआ ये रेवेन्यू डिक्लाइन भी। वो आपका मिक्स चेंज हो गया ना, 70-30 वाला मिक्स हो गया, जबकि 80-20 होना चाहिए था। याद है ना, प्राइवेट स्टूडेंट ज़्यादा होना चाहिए था जबकि प्राइवेट स्टूडेंट कम हो गया। It is due to the change in mix of private and government funded students in actual. The budget was expected to enroll more number of private students whose fees is higher. देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रखा हुआ है, खाली रेट को ही तो कंपेयर किए ना हम लोग। मतलब रेवेन्यू का रेट भी सेम ही था वैसे, बजट और एक्चुअल, तो डिफरेंस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन में डिफरेंस आ गया। थर्ड, thus a major impact on profits has come due to increase in expenses the expenses, the actual expenses are,
कितना ज़्यादा है देखो तो परसेंट निकालो। $12.47% higher than the budget. There is an overspending देखो सैलरी में भी ओवर स्पेंडिंग है, ट्यूशन मटेरियल में सबसे ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग हुआ है। अज्यूम कर लो कि फिक्स कॉस्ट सेम रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट में ओवर स्पेंड हुआ होगा। फिक्स कॉस्ट में अपना मन से क्या चेंज समझें। ड्यू टू एक्स्ट्रा सैलरी, 10% एक्स्ट्रा सैलरी दिया हुआ है देखो लेक्चरर को, सैलरी पेड टू लेक्चरर्स और फिर आप देखना एंड ऑफ रुपीज कितना हुआ ट्यूशन मटेरियल में, देखे तो कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया हमने। ट्यूशन मटेरियल में कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया है, 4200 माइनस 3694.12 डिवाइडेड बाई 3694.12, 13.69%, and of 13.69% extra cost in tuition materials the reasons for this extra cost must be investigated। हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि क्या कारण से यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हुआ होगा, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, ये एनालिसिस का एक पार्ट हुआ है। एक और लाइन लिख सकते हैं, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट has also been higher, नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। क्वेश्चन को अगर आप ठीक से पढ़ेंगे ना, उसमें दो पार्ट था। एक पार्ट था कि आपको कोलेट करना था एक्चुअल फिगर्स
सॉरी, एक पार्ट था प्रिपेयर वेरिएंस एनालिसिस, ये हो गया हमारा। कोलेट द एक्चुअल फाइनेंशियल फिगर ऑफ नॉलेज बेस, यूज इट एज बेसिस टू प्रिपेयर एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लर्निंग होराइजन एंड नॉलेज बेस। सो अब एनालिसिस करना है हम लोगों को कॉम्पिटिटर के साथ। नंबर बी लिखिए, लर्निंग होराइजन परफॉर्मेंस compared with knowledge base। ठीक है, अब इसमें जनरली मिस्टेक क्या होता है कि आप फाइनेंशियली खाली देखते हो, आपको दोनों देखना है, फाइनेंशियल वर्सेस नॉन फाइनेंशियल, जितना हो सके मिला देना है। सारा तो मैं नहीं बताऊंगा, इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं दिखा रहा हूं। जैसे यदि आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक अपेंडिक्स दिया हुआ था पूरा, उसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन हायर इन लर्निंग होराइजन देन नॉलेज बेस। शॉर्ट में भी लिख देता हूं, बार बार लर्निंग होराइजन नहीं लिखकर LH लिख देंगे, और यहां पे नॉलेज बेस का KB लिख दिया। सेकेंड पॉइंट, जितना हो सके ब्रेक करके लिखोगे ना तो क्या होगा, आंसर चेक हो जाएगा ढंग से। अगर आप कचरा करके एक पैराग्राफ में घुसा दे रहे हो, मतलब आप उसको हिंट कर रहे हो कि भैया ज़्यादा पढ़िएगा नहीं। अगर आपको पता है कि आपने ऐसा ही माल डाला है तो पैराग्राफ चेंज करना ही मत। ठीक है, और जब सही चीज़ लिख रहे हो तो छोड़ छोड़ के लिखना। नंबर 2, रेवेन्यू देखो, नॉलेज बेस का टोटल रेवेन्यू क्या था, 90-50, और हम लोग का कम है, जबकि हम लोगों का स्टूडेंट ज़्यादा है। द रेवेन्यू इज लोअर इन लर्निंग होराइजन in spite of a slightly higher number of students। देखो, एनालिसिस मतलब क्या होता है, हर एक चीज का ना कारण खोजते हुए चलना है, लिंक खोजते हुए चलना है। इन स्पाइट ऑफ अ स्लाइटली हायर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट फंडेड स्टूडेंट्स which is not applicable for knowledge base। थर्ड, एनालिसिस करने के लिए एक और मेज़र नया निकाला जा सकता है, जो नया चीज़ सिखाया जा रहा है वो उसको भी सीख लो। एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट भी आप निकाल सकते हो। एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट
इन लर्निंग हॉराइजन कितना है, एक्चुअल में देख लेना, एक्चुअल में। ये निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, उतना कोई मैंडेटरी नहीं है, बट क्या एक सीख लिया यहाँ पर। कितना आ रहा है आप देखिए, डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू पर स्टूडेंट 7987.5 डिवाइडेड बाई 7850, 1,01,000 101,751 101,751 अप्रॉक्स। एंड इन नॉलेज बेस इज, देखो कितना रुपया है, 9050 डिवाइडेड बाई 7800 116026। एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट भी आप निकाल सकते हो। एक्चुअल को लेकर डिवाइड करके निकालो, 6311 डिवाइडेड बाई 7850 इंटू 1 लाख कर लो, 80,395 आ रहा है। एंड इन नॉलेज बेस इज 26436 डिवाइडेड बाई 7,800, 82513 आ रहा है। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ पे रेवेन्यू कम है तो हमारे यहाँ पे कॉस्ट भी कम है। दिस इज इंडिकेटिंग दैट learning horizon is having lower average revenue as well as low average cost per student, as well as low average cost per student. This needs to be detailed further. Number 4, the course fees of subjects is higher for accounts
in learning horizon and lower in law and economics. As compared to knowledge base. The lower fees might attract more number of students. The impact of fees on enrollment needs to be reviewed. Fifth, the cost of tuition materials. अगर आप देखेंगे नॉलेज बेस में बहुत कम था, 4200 से 4000, यानी 2 करोड़ रुपया बचाया है. इज सिग्निफिकेंटली लेसर in knowledge base. Learning horizon should review the reasons for the extra cost. देखो रीजन पता चलता तो लिख देते, नहीं पता है तो करना चाहिए, बस ये लिख दे रहे हैं. नंबर 6, the staff salaries are higher in knowledge base and this may be the reason that there is less turnover of lecturers and lesser staff, lesser number of admin staff. The staff salaries are higher in knowledge base and this may be the reason that there is less turnover of lecturers and lesser number of admin staff in knowledge base. Lower salary to lecturers may also impact the quality of education. The knowledge base is hiring freelancers whereas learning horizon
does not hire this may be cost efficient but may impact the quality of education. The details to be reviewed. अब जैसे क्या होता है एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको 2 घंटा ले लेगा तो आप तो सक नहीं पाओगे ना एक क्वेश्चन। तो समटाइम्स यू नो कि ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है, आपको मालूम है अगर इतना बड़ा आ गया तो नहीं करेंगे। हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी ये चीज़ समझे और आपको सिर्फ एक ही पार्ट पूछे। ये जैसे यहाँ पे 3 पार्ट है, 3 पार्ट नहीं पूछ के वो एक ही पार्ट पूछा, ऐसा भी हो सकता है। अब एक ही पार्ट करने में सर अगर 2 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, तो फिर क्या तो उस सम को एकदम लास्ट में करेंगे। आपको पता होना चाहिए थोड़ा आइडिया से कि इसको करने में कितना समय लग जाएगा। ये जजमेंट तो आपको करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कैसे होगा? 2 घंटा तक एक ही सम करते रहोगे तो पास कैसे होगे? बहुत बार क्या होगा कि खाली वर्किंग करके छोड़ दो, अब एनालिसिस मत करो। अब इतना एनालिसिस लिखा वो सब करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ये भी कर सकते हो कि इतना पॉइंट्स नहीं लिखकर खाली एक लाइन का एनालिसिस दे के आ जाओ, देखा जाएगा। जैसे वर्किंग किया, फिर 2-3 लाइन का एनालिसिस कर दिया, बस खत्म। सो मेरे हिसाब से ये पार्ट 1 हो गया है और लिखने का एकदम दिलचस्पी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है। पार्ट 2 में चले आइए आप। हाँ, आप 1 लाइन भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, इसी में 1 घंटा लग गया, आप तो देख रहे हैं ना वर्किंग करने में। अगर किया हुआ है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, बट इतना, जैसे मेरा क्या कहना है, एग्ज़ाम में अगर ये 20 मार्क का आ गया, आपके पास 20 मार्क के लिए सिर्फ 40 मिनट है। 35 मिनट खूब जोर मार के, जैसे 180 डिवाइडेड बाई आपको 5 क्वेश्चन करना तो 36 मिनट है, मतलब खूब जोर करके 40। आपको आधा घंटा में ही करना है, तो आधा घंटा अगर इसी में लग गया तो एनालिसिस में अगर समय दोगे तो होगा नहीं। तो एनालिसिस में खाली एक ही लाइन में लिख के ओवरऑल प्रॉफिट ऐसा ऐसा है, रिव्यू करना चाहिए कॉस्ट एंड अदर रेट्स ऑफ रेवेन्यू को, और अदर नॉन फाइनेंशियल थिंग्स लाइक कोर्स रेट क्या है, ये सब जो मैंने लिखाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज वगैरह भी चेक करना चाहिए। बस इतना बोल के निकल जाओ। चलो आओ पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है? यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस एज पर फिट्जगेराल्ड मून मॉडल, एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स एंड इनोवेशन। नंबर 1 है इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस। दिस कैन बी मेजर्ड from the pass rate the overall pass rate is 97% as compared to 95% in budget
and 93% in knowledge base. This may be due to more full-time lecturers than freelancing staffs. अभी कनेक्ट करना जरूरी है ना, रीजनिंग करना जरूरी है. An open feedback from students would provide more insight. नंबर 2, देख रहे हैं शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूं मैं. अगर आप इंस्टीट्यूट का दिख देख के लिखोगे ना, आपका दिख देख के लिखने से पूरा पेपर खत्म नहीं होगा. मैं तो इतनी बार आपको बोलता हूं, मन से काट कूट के लिखना ही पड़ेगा. आप इंस्टीट्यूट का आंसर पे मत जाइए. फ्लेक्सिबिलिटी, भाई फ्लेक्सिबिलिटी जनरली 3 तरह का फ्लेक्सिबिलिटी होता है. एक स्पेसिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, और एक होता है ऑन टाइम. याद आ रहा है आपको? 3 तरह का फ्लेक्सिबिलिटी बताया था मैंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में. वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी और एक टाइम यानी स्पीड. सो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी इज के बारे में आप बोल सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग वीकेंड कोर्सेज. स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग weekend courses and knowledge base is starting with online tuitions. Hence, learning horizon must consider implementation of these along with an option to award an intermediate qualification. याद है ना आपको? Third, resource utilization. The prime resource is lecturer and admin staff. There is a high turnover of lecturers in learning horizon as compared to knowledge base. An exit interview might be a useful method to identify
the reasons for the same. Further, knowledge base is able to cater almost same number of students. Knowledge base is able to cater almost same number of students with lesser admin staff. It might be that they have been provided with better resources than Learning Horizon. The ways of improving efficiency to be looked into. उतना बड़ा बड़ा कोई सेंटेंस भी लिखने का जरूरत नहीं मेरे नज़र में, छोटा छोटा लिखो बट फास्ट लिखते रहो. लास्टली, इनोवेशन. अगर आप देखेंगे नॉलेज बेस का न्यू कोर्सेज का एक दिया हुआ था लिस्ट, लास्ट आइटम, नंबर ऑफ न्यू कोर्सेज अंडर डेवलपमेंट. नॉलेज बेस इज planning to offer 6 new courses, whereas there is no such development going on in Learning Horizon. This may impact the future market share. हो गया, यही आना चाहिए, पार्ट 2 ही आना चाहिए. पार्ट 1 इतना बड़ा वर्किंग. ऐसा एक क्वेश्चन और है, आप प्रैक्टिस में देख लेना, जो पहले आया भी है आरटीपी एमटीपी में, जिसमें ना ये स्टेटमेंट जो अपने बनाए वो बनाया हुआ था, उसके बाद का ही काम था, एनालिसिस करो, तो उसमें बहुत टाइम बच जाता है. वो क्वेश्चन ठीक है मेरे हिसाब से. अगर एक क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़े, वो बहुत लेंदी था. एनालिसिस करो खाली, स्टेटमेंट में टाइम बहुत चला गया. पार्ट 3, if there is a cap of rupees 75,000 in the fees, comma, the cost has to be lesser than this, the current average cost per student. याद है आपको, एक जगह वर्किंग किया था मैंने. इन लर्निंग हॉराइजन is 80,395. Thus, cost reduction is required in order to
recover the costs as well as to sustain in terms of profit. Learning horizon can use target costing technique to improve its cost by eliminating non-value added activities or to re-engineer or by re-engineering the course where quality is not compromised and can be delivered in a shorter duration. ठीक है, एक बार के लिए हो गया, अब और ज़्यादा नहीं लिख रहे। वैसे मन बहुत था और लिखने का कि ये भी पॉसिबल है, ऑनलाइन ट्यूशन्स में जाकर थोड़ा उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत बचता है, तो ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता था। कहीं ना कहीं कट ऑफ करना पड़ता है, वरना आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, अब लिखने से क्या है, क्लैरिटी आ जाता है। देखो, ये मत सोचो कि ये आ रहा है एग्ज़ाम में, ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचो कि ऐसे लिखना है। ओके, आइडिया लगा। अब सर ने जो लिखाया, देखो अब क्या इंस्टीट्यूट इतना बढ़ा दिया, सर जो लिखा है वो इतना लिखा है। अब अपने आप लिखोगे तो अपने आप और कट छट जाएगा, आपसे इतना भी नहीं लिखा जाएगा। बट आपको जितना लिखना चाहिए, अब उसका आइडिया हो गया एक बार। इंस्टीट्यूट का देख के तो वो लगता है ना कि वो ख्वाब है, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। वो ख्वाब पैराडाइज वाला आंसर है। हम लोग मशीन थोड़ी है कितना फास्ट लिख देंगे एग्जाम में। पूरा देख देख के भी छापेंगे ना तो भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे इंस्टीट्यूट का क्वालिटी का आंसर। तो आपको अपने से काट चाट के लिखना ही है। अब वो क्या काटेगा छटेगा, उसमें कुछ ग्राउंड्स है, वो आपको समझना है। जो मेरे आंसर से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कंपेयर करना है, मुझे हो सके तो कुछ रीज़न बताना है, लिंक करना है, बस